Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our economic series, that is a wonderful initiative of Udan IAS. To be more specific, in the last of the class, we majorly were doing regarding the impacts of NPA. NPAs were your non-performing assets. है ना? I had talked about that is how NPAs are majorly responsible for the lesser liquidity in the market, and because of that lesser liquidity, what was majorly happening? That is your interest rates were majorly shooting out. है ना? And since your interest rates were majorly increasing, so as a result of that, your inflation was also increasing. है ना? On this entire of the topic, we had done a decent bit of I should be saying a discussion, है ना? So that is done. Now the question that arises in our mind is that if NPAs are there, what should be the way to counter them, है ना? Obviously there has to be certain kind of way in which we should be counter these NPAs. Otherwise these will I should be saying this entire of the NPA will totally destroy the Indian economy, and that is just not the requirement of the our objective is to maintain Indian economy in a healthy standard, in a wise and in a decent manner, है ना? अच्छा. So what I will be doing in today's class is that I will be discussing regarding in some of the ways in which I could counter these NPAs, है ना? ठीक. अच्छा. So when I'm saying that I should be discussing these are the ways in which I can tackle NPAs, I would rather be saying that is my ways. My ways will majorly be divided. Majorly be divided into two of the parts. ठीक है? दो पार्ट्स में मैं डिस्कशन करूंगा. ठीक, क्या डिस्कशन होगा? ठीक, नंबर फर्स्ट आई विल बी सेइंग दैट इज इन अर्लियर ऑफ द टाइम्स व्हाट वी मेजरली हैड डन. ठीक है, इन अर्लियर टाइम्स आई शुड बी सेइंग दैट इज previous initiative, or rather I should be saying that is previous initiatives. See, even though these are previous initiatives, but still the question had been asked on these or the previous initiatives as well. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक साल क्या लीड बैंक स्कीम के ऊपर, है ना, 2 बार क्वेश्चन आया है लीड बैंक स्कीम के ऊपर, है ना. सो यू शुड बी प्रिपेयर इन ऑर्डर टू हैंडल these काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना. एंड ऑब्वियसली थ्रू द क्लास आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड आई कैन सो दैट आई कैन easily make it to easily make it accessible to you people, है ना. ठीक, so I will be saying that is what had been the previous initiative and what are the initiatives that are क्या contemporary that are going on. Contemporary initiatives. What is the meaning of contemporary? Contemporary means at the same time, in the same time whatever is happening. ठीक, अच्छा. So start करते हैं अपना discussion that what had been the initiatives of what of previous initiatives कितने रहे हैं हमारे. ठीक, let's see. If I'm talking about the previous initiatives of these entire of the NPAs, okay, number first of the scheme that is coming out is 5/25 scheme. Take number first of the scheme that is coming out is 5/25 scheme. Now what is this 5/25 scheme? Is that I am saying that I will be try to restructure. I will try to restructure my debt. I will try to restructure my debt in a manner. ठीक, मैं क्या करूंगा, अपना जो कर्ज है उसको क्या रीस्ट्रक्चर करता रहूंगा. उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आई विल कीप ऑन चेंजिंग. उसका टर्म्स एंड कंडीशंस I will keep on changing as per the feasibility of the situation at that time. For how many years? For 25 years. For 25 years. And in these 25 years I will be saying that every 5 year, ठीक है, हर 5 साल में every 5 year I will be doing what? I will be restructuring my लोन. वैसे मैंने क्या मान लो क्या ये t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 पे मैंने किया. ठीक, रिस्ट्रक्चर मतलब जो ये तो नॉर्मल इनिशियल कंडीशंस थी. ठीक, फिर t इक्वल टू 5 पे कर दिया, फिर t इक्वल टू 10 पे कर दिया, फिर t इक्वल टू 15 पे कर दिया, देन 20 एंड 25.
ठीक, ऐसे करके मैंने क्या किया, पूरा रिस्ट्रक्चरिंग किया। ठीक, कब तक किया, 25 साल तक किया, हर 5 साल में, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सिंपली दैट इज 5/25 स्कीम। ठीक, दिस इज मेजरली डन so that the lender will be so that the lender will be in a capacity to pay back the loans as and obviously क्या this entire of the scheme, ठीक है, this entire of the scheme had been very much effective in delivering the results as well, है ना। So this entire of the scheme in which we are restructuring our loans every 5 years for 25 years, हर 5 साल में करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कितने साल तक, 25 साल तक। ठीक, so that is the very first of the initiative that you should be क्या having a look about. Okay. Now see, if I'm saying regarding the second of the scheme that is out there, and that is, this scheme is called as strategic debt restructuring. That is called as strategic debt restructuring. Okay. When I'm saying regarding strategic debt restructuring, I should be saying in the strategic debt restructuring, I am trying to change my loans to equity. ठीक, मान लो अच्छा, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है क्या कि मेरा उसमें प्रपोर्शन कितना है, मेरी भागीदारी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक, एक कंपनी ने क्या किया, कंपनी का नाम है ए, ठीक है, कंपनी ने किससे पैसा लिया, कंपनी ने पैसा लिया बैंक से, ठीक है, इट हैज मेजरली टेकन मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक, बैंक से उसने पैसा लिया, एंड खुदा ना खास्ता क्या हुआ कि दिस कंपनी इज नॉट एबल टू पे व्हाट, टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नाउ सी व्हाट विल बी हैपनिंग, बैंक बोलेगा भैया मेरा पैसा दो, प्लीज गिव मी माय मनी, अदरवाइज मैं रुष्ट हो जाऊंगा, ठीक है, आई विल बिकम एंग्री। ठीक, सो अब क्या कंपनी क्या बोलेगी, अच्छा ऐसा करो, आई एम नॉट एबल टू पे योर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, रादर व्हाट आई विल बी डूइंग, आप मेरे बिजनेस में क्या बन जाओ, भागीदार बन जाओ। ठीक, so whatever the amount I have taken from you, in respect to that I am not able to pay you the required amount, and in respect to that I will be giving you the due partnership in my business। ठीक, पहले मेरे पास 100% स्टेक था, ठीक, मैं लोन पे नहीं कर पाया, तो अब क्या हुआ, अब इसमें से मैंने 80% स्टेक अपने पास रखा, और 20% मैंने किसे दे दिया, 20% आई हैव गिवन टू बैंक, 20% आई हैव गिवन टू बैंक। ठीक है, एंड दिस एंटायर ऑफ द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस एंटायर ऑफ द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। दिस एंटायर ऑफ द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कि भैया जब आपका जो लेंडर है, ठीक है, जो कर्जदार है, ठीक, ही इज नॉट एबल टू पे द मनी, ठीक, वो क्या करता है, अपने प्रपोर्शन से, अपने बिजनेस के प्रपोर्शन से, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ परसेंटेज निकाल कर दे देता है, किसे, बैंक को, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। नाउ सी, सो दिस हैज बीन कॉल्ड एज, दैट इज द सेकंड ऑफ द वे इन विच वी कैन काउंटर दैट। ठीक, अगला देखो, अगला मैं क्या बोलता हूं, एसेट क्वालिटी रिव्यू। अगला मैं क्या बोलता हूं, एसेट क्वालिटी रिव्यू। नाउ सी, एसेट क्वालिटी रिव्यू में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेजरली अ बैंक। ठीक, बैंक के पास क्या है, बहुत सारे एसेट है, मतलब एसेट का मतलब इट हैज मेजरली गिवन आउट मनी टू ए, इट हैज गिवन आउट मनी टू बी, इट हैज गिवन आउट मनी टू सी। ठीक है, ऑब्वियसली जब इसने इनको ए बी सी को पैसा दिया, तो ऑब्वियसली ए बी सी इनको वापस करेंगे, और जब ये वापस करेंगे तो ये बैंक के लिए क्या हो गया, एसेट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एसेट। नाउ सी, हो सकता है बैंक को लग रहा है कि भैया कि ये जो ए है, दैट इज नॉट इन अ, प्रोबेबली इट माइट नॉट बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर मी व्हाट, टू डिलीवर मी द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब इससे मेरा पैसा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, इससे मेरा पैसा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। So what the bank will be doing, it will be trying to classify its asset into several of the parameters। ठीक, वो क्या बोलेगा, हाईली स्ट्रेस्ड एसेट्स, मान लो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड एसेट कौन है, हाईली स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक, उसके बाद लो, मतलब क्या, जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, दैट इज स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक, इस टाइप से वो क्या करेगा, एक पैरामीटर चार्ट बना लेगा, एंड उसमें किस में डाल देगा, हाईली में मान लो डाल दिया ए को, ठीक है, फिर स्ट्रेस्ड एसेट में किसी और को डाल दिया, बी सी को, फॉर एग्जांपल दैट इज द केस। ठीक, so when you are doing these kind of classification, what is majorly happening, that you are able to keep a track record of your stressed assets
and subsequently you will be able to manage your what I will be saying that you will be subsequently be able to manage your I should be saying that is your approach in handling these of the assets है ना. And this entire of the thing is called as what, that is asset quality review, in which what we are doing, that is we are doing the classification of the stressed assets. We are क्या matching their degree of proneness of failing out है ना. So that is the thing that you have to remember. ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका asset quality review. ठीक, now see फोर्थ जो मेथड आता है ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ क्या रिड्यूसिंग योर एनपीएज इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज योर S4A स्कीम. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, S4A स्कीम. ठीक, अच्छा, S4A स्कीम में मैं क्या बोलता हूं, इट इज स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. इट इज कॉल्ड एज अ स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. ठीक, अच्छा, इस वाली स्कीम में, अच्छा, इस पे ना एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है जो मैं आपको क्या बताऊंगा. ठीक, अच्छा, क्या S4A स्कीम में क्या होता है, इन S4A स्कीम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग, फॉर एग्जांपल लेंडर हैज मेजरली टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक. ठीक है, लेंडर ने क्या लिया, बैंक से लोन लिया. ठीक, एंड खुदा ना खास्ता कि दिस लेंडर इज नॉट एबल टू पे ऑफ. So what will be happening in this entire of the case is that we are trying to enhance the capacity of the lender. ठीक, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा. I will be trying to enhance its capacity so that over the future course of time this entire of the lender will be able to pay back the loan at the required interval of time. हो सकता है मैं उसकी क्या करूं, मैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आई माइट क्या गिव बिट अमाउंट मोर. ठीक है, मैं उसे थोड़ा और पैसा दे दूं कि भैया इससे क्या हो सकता है, आई माइट ट्राई टू क्या हेल्प हिम आउट इन एक्सप्लोरिंग द न्यू वेंचर्स. ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, क्या अपना जो लेंडर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा इन अ मैनर कि ही इज रीचिंग टू दैट ऑफ द पॉइंट इन विच ही विल be able to give out what, that is the money back to me. Now see, ठीक, अच्छा, आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे. ठीक है, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास, बट ऑब्वियसली बिफोर दैट व्हाट आई विल बी डूइंग वन यूपीएससी क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन करके देखते हैं. ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, S4 स्कीम पर क्या बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following statement describes the scheme for sustainable structuring of stressed assets. S4A के ऊपर क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट आपको करवाया. ठीक, यूपीएससी 2016 का आई गेस ये क्वेश्चन है. ठीक, यूपीएससी आई गेस इट इज 2016 ओनली. ठीक है, 2016-17 एक बार देख लेना. ठीक, अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंसीडरिंग ecological cost of the development scheme formulated by the government. No. ठीक, it is a scheme for the RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties, obviously. ठीक, it is a disinvestment plan of the government regarding the central public service undertaking. No. ठीक, it is an important provision in the insolvency and bankruptcy code recently implemented by the government. No. ठीक है, इसका आंसर क्या है, आंसर इज बी, दैट इज इट इज अ स्कीम ऑफ द आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज. ठीक है, सो बाय दिस रीस्ट्रक्चरिंग व्हाट विल बी हैपनिंग, दैट इज द एंटिटी विल बी एबल टू पे ऑफ द लोन्स एट रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक, सो आज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, आज मैंने आपके साथ एनपीए को ठीक करने के लिए, इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस एनपीए, व्हाट हैड बीन द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द पास्ट टाइम्स दैट वी मेजरली हैड डिस्कस्ड. ठीक, इसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया, वी मेजरली हैड डिस्कस्ड रिगार्डिंग 5/25 स्कीम इन विच योर रीस्ट्रक्चरिंग इज हैपनिंग एवरी 5 ईयर फॉर 25 ईयर्स.
ठीक. देन वी मेजरली हैड डिस्कस्ड अबाउट व्हाट दैट इज स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें हम क्या लोन को इक्विटी में चेंज कर देते हैं. हम लोन को जो पैसा नहीं दे पाए उसकी जगह हम उसको पार्टनरशिप बना लेते हैं, पार्टनरशिप थोड़े परसेंटेज दे देते हैं अपने बिजनेस में. ठीक. देन वी हैड मेजरली टॉक्ड अबाउट एसेट क्वालिटी रिव्यू इन विच वी हैड टॉक्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने किया स्ट्रेस्ड एसेट्स का. उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट दैट इज S4A, इन विच वी आर ट्राइंग टू एनहांस द lender's ability over due course of time so that of the lender will be able to pay off the loan at required amount of time. और उसके बाद हमने क्या किया, S4A पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिया जो यूपीएससी 2016-17 में आया हुआ है. ठीक. आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास. हाँ, बट जाने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट जो मैं हर क्लास में करता हूँ, क्या कि प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उड़ान IAS का चैनल because it helps us to keep us motivated. Please share this video with your friends, relatives, companions and everyone, है ना, because that really motivates us to keep up the good work going. ठीक. अच्छा, and yes, if you want to connect with me on the Telegram group, obviously you can do that. This is my Telegram group, Sammy2908. Lot of my students are part of it, and obviously you can also become a part of this genuine and very efficient initiative. ठीक. सो आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड रेस्ट विल बी डूइंग द नेक्स्ट ऑफ द क्लास. और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. ब्लश 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 ब्लश. वाई? बिकॉज UPSC इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज़ अ गेम ऑफ EQ. चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.